Good morning, students. Myself Rekha Sharma, and this is online class of MSc Final Organic Special, Semester 3rd, Paper 5th, Organic Synthesis. The topic of today's lecture is synthesis of alcohols, acids, and carbonyl compounds by one group carbon-carbon disconnections. One group carbon-carbon disconnections. The disconnections which we have studied so far have all been of carbon-oxygen, carbon-nitrogen or carbon-sulfur bonds. But organic molecules contain many carbon-carbon bonds, and the carbon-carbon bond-forming reactions are the most important reactions in organic synthesis. Thus, we must learn which carbon-carbon bond to disconnect in organic molecules. अब तक हमने जितने भी डिस्कनेक्शंस को स्टडी किया है उन सभी में कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन सल्फर बॉन्ड्स थे, किंतु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कई कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अतः ये जानना आवश्यक है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो। Reagents are available for both electrophilic, for example alkyl bromide, and nucleophilic, for example alkyl magnesium bromide carbon, whereas heteroatoms are almost always added as nucleophiles. We can analyze carbon-carbon disconnections the same way as we have analyzed two-group carbon halogen disconnections. One-group carbon-carbon disconnections are summarized in Table 6.2. Though we are using logic developed for two-group CX disconnections, there is now only one functional group, and so we must call these one-group carbon-carbon disconnections. इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों प्रकार के कार्बन्स के लिए रिएजेंट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन्स के लिए रिएजेंट हैं एल्किल ब्रोमाइड, और इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक कार्बन्स के लिए जो रिएजेंट्स हैं वो हैं एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हेटेरोएटम्स को हमेशा न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में ऐड किया जाता है। इस टेबल में 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस शो किए गए हैं। डिस्कनेक्शंस ए, बी और डी तीनों में कार्बेनायन सिंथोन R- के लिए रिएजेंट की आवश्यकता होती है। जनरली किसी रिएक्शन में सिंपल कार्बेनायंस नहीं बनते, अतः हमें एक ऐसे रिएजेंट की आवश्यकता होगी जिसमें कार्बन खुद से अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जैसे कि एक मेटल से जुड़ा हो। सबसे अधिक पॉपुलर रिएजेंट्स इसके लिए एल्किल लिथियम और एल्किल मैग्नीशियम हेलॉइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं। वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस, synthesis of alcohols by 1,1 carbon carbon disconnections. Any alcohol can be disconnected at the carbon carbon bond next to oxygen. For example, A in table 6.2 to give an aldehyde or ketone and a Grignard reagent as starting materials. For example, let us design a synthesis for the following alcohol 1, for which retrosynthetic analysis and design synthesis have been shown by following equations. किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीजन एटम के नेक्स्ट वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड पर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे एल्डिहाइड या कीटोन और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल 1 का अगर हम सिंथेसिस डिज़ाइन करें और इसके रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस को देखें तो इसमें 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक कीटोन प्राप्त होता है।
इस बेसिस पर अगर हम इसका सिंथेसिस डिज़ाइन करें तो इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स की रिएक्शन से हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल 1 यानी अल्कोहल प्राप्त होगा. An alternative approach to alcohols having two identical R groups, second, is to disconnect both at once. The ester is a starting material. This type of disconnections are called double disconnections, and these can be a shortcut for the synthesis. For example, retrosynthetic analysis and design synthesis for target molecule second have been shown by following equations. ऐसे एल्कोहल्स जिनमें दो आइडेंटिकल या समान आर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों को एक साथ डिस्कनेक्ट किया जा सकता है और इनमें एस्टर्स हमारे स्टार्टिंग मटेरियल होंगे. ऐसे डिस्कनेक्शंस डबल डिस्कनेक्शंस कहलाते हैं और ये सिंथेसिस के लिए एक शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं. टारगेट मॉलिक्यूल 2 के 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें दो मॉलिक्यूल्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एक मॉलिक्यूल एस्टर प्राप्त होता है. अतः इसके डिज़ाइन सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल एस्टर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल सेकंड देगा. Synthesis of carbonyl compounds. The easiest approach to aldehydes and ketones via 1,1 carbon-carbon disconnection is by oxidation of the corresponding alcohols. This has been illustrated below by the synthesis of the ketone third. 1,1 कार्बन-कार्बन डिस्कनेक्शन के द्वारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने की सबसे इजी मेथड कॉरस्पॉन्डिंग या संगत अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कीटोन 3 का रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें, जिसमें रिट्रोसिंथेटिक एरो ये दर्शाता है कि टारगेट मॉलिक्यूल 3 कीटोन को उसके संगत अल्कोहल A के ऑक्सीडेशन से प्राप्त किया जा सकता है. यानी इसमें OH फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन कीटो ग्रुप में किया जाता है. ये अल्कोहल A 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के द्वारा एक एल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेनॉल और एक 1 हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देता है. इस एल्डिहाइड को संगत अल्कोहल B के ऑक्सीडेशन से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा अल्कोहल B के 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C प्राप्त होते हैं. इस बेसिस पर हम कीटोन 3 का सिंथेसिस डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C की रिएक्शन से हमें पहले अल्कोहल B प्राप्त होगा, जो PCC यानी पिरिडीनम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीडेशन कराने पर साइक्लोहेक्साइल एल्डिहाइड देगा. ये एल्डिहाइड हेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल A बनाएगा, जो PCC द्वारा ऑक्सीडेशन से हमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यानी कीटोन देगा. सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Direct disconnection is possible at this oxidation level, since CO2, specially convenient as solid dry ice, react with Grignard reagent or alkyl lithium to give a carboxylic acid. This method complements
hydrolysis of cyanides since the disconnection is the same. For example, retrosynthetic analysis and design synthesis for carboxylic acids have been shown by following equations. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन लेवल पर डायरेक्ट डिस्कनेक्शन संभव है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड ड्राई आइस के रूप में यूज़ करना कन्वीनियंट होता है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल लिथियम से रिएक्ट कर इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। ये मेथड साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के ही समान है क्योंकि दोनों में डिस्कनेक्शंस सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड X के 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें एक एल्काइल लिथियम या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और CO2 प्राप्त होते हैं। इस बेसिस पर हम एसिड का सिंथेसिस डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्किल लिथियम की CO2 के साथ रिएक्शन से एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बोक्सिलेट या एल्किल लिथियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होते हैं जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल यानी एसिड X बनाएंगे। इसी प्रकार एल्किल ब्रोमाइड और साइनाइड आयंस की रिएक्शन से एल्किल साइनाइड्स प्राप्त होंगे जो एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल X देंगे। Thank you.